Hey guys, what's up? Hi everyone. A very, very, very good afternoon to all of you. अरे भाई कैसे हो? How are you guys? आप लोगों के लिए खास मेरे टेलीग्राम हैंडल का लिंक ये देखिए. I am very well, Kalpar Singh. Thank you. China has shown its hegemony today. चाइना सारी दुनिया खरीद लेगी मेरे हिसाब से तो. China has big time shown its hegemony. आप सोच सकते हैं. Today, China bought 1.75 crore shares in HDFC. HDFC बैंक में चाइना ने 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स खरीद लिए. हद हो गई है. हमारे बैंक्स भी तुम ओन कर लो. हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप लोग? So, guys, you will find the PDF of this chapter on my Telegram handle. Please subscribe to my Telegram handle. मेरे Telegram handle का लिंक यहाँ पे पिन करा हुआ है. जो आप Telegram handle का लिंक देख सकते हो, that has been pinned over here. Please subscribe to the Telegram handle. Each one of you, आप सब लोग Telegram handle को subscribe करें. So guys, I hope you are enjoying the classes. आप सब लोग classes enjoy कर रहे हैं. So we have already covered the concepts, the most important concepts of banking. I've covered the important concepts of monetary policy. Yesterday we did all the key rates, deciding what is important, what is unimportant. ये सब चीजें हमने कल करी थी, if you are able to recall. And today we are starting with. Today we are continuing with monetary policy. Monetary policy से आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. So monetary policy में जो मैं चीज आज करने जा रहा हूँ वो ये है, the remaining concepts that were left yesterday. I repeat, the remaining concepts that were left yesterday. कि क्या remaining concepts है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग समझेंगे, ये हम लोग अप्लाई करेंगे. Everyone. So it states the central bank warrants a statutory liquidity ratio as a reserve deposit ratio for commercial banks, which among the following objectives warrant an SLR. पूछा ये जा रहा है कि SLR का यूज क्या है. 18%, 19%, 20% के आसपास का SLR जो है हर बैंक मैंडेटोरली रिजर्व रिक्वायरमेंट में रखता है. इट कीप्स दैट मनी एज अ रिजर्व.
व्हाट इज दैट रिजर्व यूज्ड फॉर, वो रिजर्व किस चीज के लिए यूज होता है, ये देखने वाली बात है. वी हैव टू लर्न दिस. सो गाइस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में दो तीन स्टेटमेंट्स कल हमने पढ़ा था, तो एक बार क्विक रिवीजन देते हैं. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर आप मुझे ये सोच के बताइए, बहुत सोच समझ के बताइएगा, कि कैन इट बी केप्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैन इट बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड एनी अदर फॉर्म, और एनी फॉर्म अदर देन कैश ऑल्सो. क्या वो सिर्फ कैश के रूप में रखा जा सकता है, या कैश के सिवा और किसी रूप में भी रखा जा सकता है? Yes, it can be kept in the form of cash as well as in the form of gold and and government securities. Government securities के रूप में रखा जा सकता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. It can be kept in the form of cash, it can be kept in the form of gold, and it can be kept in the form of government securities. सो आइए देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के एम्स के बारे में. व्हाट आर द एम्स ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स व्हिच द बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ. जो भी परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स है जो कि बैंक को अपने पास रखने हैं, व्हिच बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ, इट इज केप्ट विद द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, G-Secs एंड गोल्ड. कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड इस रूप में रखे जाते हैं. इट इज केप्ट इन दिस फॉर्म. There are broadly three objectives of maintaining a healthy SLR. Healthy SLR maintain करने के तीन objectives हैं. इन तीन वजहों से statutory liquidity ratio maintain करा जाता है. To ensure that banks should maintain sufficient cash with themselves in order to avoid bank runs. This I even explained yesterday. मैंने कल भी आपको समझाया था कि बैंक रन्स का मतलब है कि अगर लोग बैंकों की तरफ भागे या बैंक को इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट हो, so bank doesn't have to run elsewhere. Bank doesn't have to run at 10 places कि पैसा दे दो, पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, etc. So banks should maintain sufficient cash with themselves in order to avoid bank runs. This is the first statement. Followed by that, the second is to control the expansion or contraction of bank credit. Bank credit यानी कि लोन्स का जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक की मार्केट में मनी सप्लाई कम जाए, तो वो एसएलआर बढ़ा देगा. इट विल इंक्रीज एसएलआर, and vice versa if it wants money supply to increase. So increase in SLR or SLR is indirectly proportional to money supply. अगर SLR बढ़ता है, money supply कम होता है, and vice versa. This is how we regulate the bank credit. To control the expansion or contraction of bank credit, RBI uses SLR as a quantitative tool to control expansion or contraction of bank credit. तो कंट्रोल करना है किस चीज को? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट. तो ये जो चीज है ये आती है एज अ पार्ट ऑफ बैंक क्रेडिट यानी कि लोन्स. एंड द थर्ड इज टू इंड्यूस कमर्शियल बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देखिए, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज को इशू करा. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या है? किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ये अलग अलग रूप में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू करी जाती है. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड इन डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स. अब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज अगर चाहता है कि बैंक हमसे खरीद ले, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उनकी सिक्योरिटीज मार्केट में जाए या हमारे पास आए, लोगों के पास आए, गवर्नमेंट वांट्स इट्स सिक्योरिटीज टू बी परचेज्ड बाय द बैंक्स. सो इन दैट केस बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? वेयर विल द बैंक्स गेट द मनी फ्रॉम? सो बैंक्स विल यूज द एसएलआर फंड्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो देखिए एसएलआर के एम्स क्या हुए. The first is to ensure that banks should maintain sufficient cash with themselves in order to avoid bank runs. In order to avoid bank runs, they should maintain sufficient cash. That is one. To control the expansion or contraction of bank credit, bank का जो credit है उसका expansion और contraction को control करना है. And the third is to induce commercial banks to buy government securities, ताकि commercial banks government securities खरीद सके. These are the things which are there as a part of SLR. ये SLR का part है. इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. यस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसएलआर होता है ना. नो, बैंक्स डोंट डिसाइड, आरबीआई डिसाइड्स. आरबीआई डिसाइड करता है
if SLR has to be 18%, 19%, 20% of NDTL. ये तो मैंने कल समझाया था श्रीनाथ. This I explained yesterday. एनबीएफसी बैंक नहीं है शिखर डैनियल, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है. नमस्कार आयुष मिश्रा जी, नमस्कार. कैसे हैं आप? दिव्यांशु राय, मोहम्मद सज्जाद खान. मिश्रा जी बताइए. So to induce commercial banks and NBFCs to buy government securities. देखिए, आप NBFCs को फोर्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए, क्योंकि NBFC के पास उतने डिपॉजिट्स होते ही नहीं है. SLR या RBI का इस टाइप से रेगुलेशन NBFC पे नहीं आता है. So commercial banks है, NBFC नहीं है. First is incorrect. As soon as we get first as incorrect, we get the correct answer. B for Bombay. 2 and 3 only. To ensure that banks should maintain sufficient cash with themselves in order to avoid bank runs, to control the expansion of bank credit. 3, 2 and 3 only. B for Bombay, 2 and 3 only is correct. I repeat, 2 and 3 only is correct. So yes, this is there. क्या बात है मिश्रा जी, मजा आ रहा है. Sayyid Shoaib, I already explained the difference between banks and NBFC in my first concept class. पहली concept class जो 4 दिन पहले हुई थी, उस दिन मैं समझा चुका हूं. So please be regular with the classes. So guys, liquidity adjustment facility and marginal standing facility are two instruments that are used by the central bank to control credit. In what ways LAF is different from MSF? Yes, Ayush Mishra आज भी पढ़ाते हैं. क्या आप LAF और MSF ये दो चीजें जानते हैं? Yes, पूनम शाह, 12:15 बजे रोज आप लाइव यहीं पे मुझे पाओगे. How can it be a fiscal policy instrument? Dipali Bharadwaj, how can it be a fiscal policy instrument SLR? बैंकों के हाथ में है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है. So LAF liquidity adjustment facility followed by marginal standing facility, दो चीज है. कल मैंने आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बताया था. LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कौन से दो रेट्स आते हैं? Which are the two rates that are forming a part of liquidity adjustment facility? No, not CRR SLR, not at all. Reverse repo rate and repo rate. So repo rate and reverse repo rate, these two rates are forming a part of liquidity adjustment facility, LAF. LAF का part है repo rate and reverse repo rate. These are the two rates that are a part of liquidity adjustment facility. Please understand the nomenclature of this term. Understand every single word. हर एक word को समझे. Liquidity adjustment facility. Liquidity का मतलब होता है money supply. I repeat, liquidity का मतलब होता है money supply. Money supply increase और money supply decrease. Money supply का increase या money supply का decrease, ये चीज क्या है? ये liquidity है. Liquidity मतलब होता है पैसा, money supply. Money supply का adjustment देखा जाता है. When you look at the adjustment, money supply increase या money supply decrease, it is adjustment. Liquidity adjustment facility, liquidity को adjust करना है. Liquidity adjustment facility, money supply का increase और money supply का decrease is seen. It is termed as liquidity adjustment facility, LAF. I repeat, it is termed as liquidity adjustment facility, LAF. तो liquidity adjustment facility का मतलब है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना. और मनी सप्लाई को जिस टेन्योर में रेगुलेट करना है उसके लिए हमारे पास दो टूल्स है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो चीजों को इंक्लूड करती है. आई रिपीट, दो चीजों को इंक्लूड करा जाता है. Yes, it can be Nandini Sharma, it can definitely be maintained, but when we use the term liquidity adjustment facility, it specifically focuses on repo rate and reverse repo rate. इस चीज को ध्यान रखिएगा. It is different. CRR, SLR are reserve ratios. Repo rate, reverse repo rate are interest rates. Interest rates के through money supply is my choice, मेरी choice है. CRR, SLR के लिए money supply banks की choice है. Reserve ratios banks की choice है. Interest rate मेरी choice है, consumer की choice है. That's the difference. CRR, SLR जब बढ़ता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता. ये चीज याद रखिएगा. CRR, SLR बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता. रेपो रिवर्स रेपो बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. दिस इज द डिफरेंस. So all are regulated by RBI.
The second term that we are studying over here is marginal standing facility, MSF, marginal standing facility. क्या आप लोगों को रेपो रेट का मैकेनिज्म याद आ रहा है? ये हमने कल पढ़ा था. Are you able to recall the mechanism of repo rate? Please tell me, what was the mechanism of repo rate? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा. दीपाली भारद्वाज, अनीश कुमार, पॉलिसी रेट भी कह सकते हो. यस, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई है भाई, ये मैंने कल परसों पढ़ाई है. आप लोग कल परसों की क्लास में थे नहीं. पॉलिसी रेट बोलते हैं, एलएएफ बोलते हैं, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया है. एवरी सिंगल थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हाउ डज इट वर्क? प्लीज टेल मी, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, एमएसएफ छोड़ो, ये बताओ रेपो रेट किस मैकेनिज्म पे काम करता है? रेपो रेट किस मैकेनिज्म पे काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, ये दो बैंक्स है. Reserve Bank of India is obviously what the central bank, the central bank of India, and commercial banks are rest of the banks. अब मुझे ये बताइए कि इसमें कौन किसको लोन देता है? रेपो रेट में कौन किसको लोन दे रहा है? बताओ. Who's giving loan to who? RBI to commercial bank. Very good. Varun Teja. Very good, Varun Teja. So RBI is giving loan to commercial bank. RBI जो है वो लोन एक्सटेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को. RBI is extending loans to commercial banks at a rate of interest. एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को तीन चीजें कही जाती है. This rate of interest, आप ध्यान रखिएगा, please remember this. This rate of interest can be called as bank rate, it can be called as repo rate, it can be called as marginal standing facility. I repeat, it can be called as marginal standing facility. So bank rate, repo rate, and marginal standing facility. These are the three terms which are given to the loan obtained by the very same mechanism. Same mechanism से जो जो लोन दिया जाता है आरबीआई द्वारा सेंट्रल कमर्शियल बैंक को, उसको हम तीन नाम देते हैं. वी कॉल इट द बैंक रेट, वी कॉल इट रेपो रेट, एंड वी कॉल इट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सवाल ये उठता है, जब सेम मैकेनिज्म का रेट है तो हम उसे तीन नाम क्यों देते हैं? व्हाई आर वी गिविंग मल्टीपल नेम्स टू द सेम मैकेनिज्म? व्हाई आर वी डूइंग दैट? बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग. अब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, आपकी इंटेलिजेंस जो है चरम सीमा पे पहुंच चुकी है. मैंने आपको कल बताया था, आप सबको याद है, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है. सो बैंक रेट इज फॉर लॉन्गर टेन्योर, राइट? बैंक रेट इज फॉर लॉन्गर टेन्योर. रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लोन्स. And marginal standing facility is for very short duration, as short as 1 day, as short as 12 hours, as short as 4 hours. SBI can ask central bank to lend them 10,000 crores. It will return 10,000 crores by tomorrow morning. 12 घंटे के लिए लोन लिया है, 10 घंटे के लिए लोन लिया है, 10,000 करोड़ का लोन, 15,000 करोड़ का लोन, उसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सो एमएसएफ इज, व्हाट इज एमएसएफ? अगर आपको एमएसएफ किसी को समझाना हो तो आप क्या बोलोगे? MSF is basically a rate of interest. I repeat, MSF is basically a rate of interest at which commercial bank borrows from reserve bank. Commercial bank reserve bank से borrow करता है और interest देता है. That is how it functions. Commercial bank borrows from reserve bank and gives the rate of interest to RBI. और क्योंकि एक तरीके से ओवरनाइट लोन है या वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन है, खास लोन है, इतने बड़े अमाउंट का लोन है, तो ये जो लोन है ये आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है. दिस वन गेट्स एट वन गेट्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज 1% प्लस रेपो रेट. मतलब नॉर्मली बाय कन्वेंशन रेपो रेट अगर 7 है तो ये 8 होगा. अगर रेपो रेट जैसे आज की डेट में 4.4 हो गया है, 4.4%, एमएसएफ हो सकता है 6% प्लस हो. आप मुझे चेक करके बताएंगे कि एमएसएफ आज की डेट में क्या चल रहा है. तो अब इस नॉलेज के बेसिस पे आप ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करें. Pradeep, you can join new courses. 27th of April ko I start with my course on polity. Thereafter, in the first week of June, I start with my course on economics. Yes, guys, please tell me
liquidity adjustment facility and marginal standing facility. They are two instruments that are used by a central bank to control credit. In what ways LAF is different from MSF? LAF MSF से कैसे फर्क है, कैसे डिफरेंट है, बता सकते हैं आप? यशस्वी वर्मा. So guys, when we learn about this, हम इस बारे में सीखते हैं. तो आइए देखिए, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. देखो, समझो ध्यान से, रविंदर सिंह. It is the primary instrument of Reserve Bank for modulating liquidity and transmitting interest rate signals to the market. मार्केट में ब्याज के कौन से सिग्नल जाते हैं, क्या मैसेज आप भेजते हो? सो ये डिपेंड करता है LAF क्या है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज. LAF includes two components. The first is repo rate and the second is reverse repo rate. The first is repo rate and the second is reverse repo rate. ये PT फैक्ट है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए. Liquidity adjustment facility is repo rate plus reverse repo rate. Have you been able to fix this in some part of your brain? Whether unconscious or subconscious or conscious part, आपके ब्रेन इतनी बड़ी है, इतनी elaborate brain है, तीन पार्ट्स है, उसमें कहीं तो ये इंफॉर्मेशन रख सकते हो. So when we talk about this, repo rate, reverse repo rate, ये दोनों चीजें कहाँ पे आती है, किसके अंडर आती है? They form a part of liquidity adjustment facility, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं. Informally, LAF is also referred to as a liquidity corridor because liquidity यानी कि money supply is maintained through LAF, liquidity adjustment facility. An interim LAF was first introduced in the year 99 based on the recommendation of the Narsimbam Committee. Narsimbam Committee जो कि 1997 में बैठी थी और 1991 में बैठी थी. नरसिम्हम के recommendation पे ये बनाया गया LAF, बिल्कुल सही बात है. A full-fledged LAF was introduced in June 2000. ध्यान रखें, इसको liquidity corridor कहा जाता है और इसमें सिर्फ दो ही रेट्स आते हैं, repo rate and reverse repo rate. So you have to remember this as a part of liquidity adjustment facility. अब आते हैं हम लोग MSF पे, marginal standing facility पे. So आपको ध्यान से सुनना है. Please listen to it very, very carefully. Marginal standing facility. It is a window for banks to borrow from the RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely. जब एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करने की क्षमता नहीं रखता या एक बैंक दूसरे बैंक को लेंड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, कैपेसिटी नहीं रखता, तो आपके पास सिर्फ एक ही जगह है देखने के लिए और वो है भीष्म पितामह. भीष्म पितामह आप जानते हैं कौन थे? भीष्म पितामह जानते हैं आप कौन थे? यस, भीष्म पितामह जो है वो आरबीआई है, बैंकिंग के आरबीआई है. So in this particular case, Reserve Bank of India would come across as a person or as an institution that would help any time it would help. तो in this particular case, आप जो है आप पैसा देते हो, you are giving away money, you are giving money or you are lending money to the banks who require money, right? जिन बैंक्स को पैसा चाहिए उन बैंक्स को पैसा दिया जाता है. भीष्म पितामह जो है वो पैसा देते हैं, हेल्प करते हैं. मतलब पैसे से ज्यादा the term should be help. It helps when maximum help is required. So MSF is a window for banks to borrow from the RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely. It was introduced in 2011 as an emergency lending facility which is available to any bank which might be in need of funds. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. किसी बैंक को अगर फंड्स की जरूरत है तो आप मतलब, और आपको फंड्स की जरूरत इंस्टेंटली है. देखिए, फंड्स की अवेलेबिलिटी तो आपको रेपो रेट से भी मिलेगी और आपको बैंक रेट से भी मिलेगी. फंड्स की अवेलेबिलिटी तो आपको हर जगह से मिलेगी. हम MSF की बात कर रहे हैं कि फंड्स की अवेलेबिलिटी इंस्टेंटली चाहिए हो तो क्या किया जाए.
तो lending is done against government securities. It is at a very short term fortnightly basis. बहुत शॉर्ट टर्म पे है, फोर्टनाइटली बेसिस पे है, मतलब 1 डे 2 डेज अप टू 14 डेज इस चीज को इंक्लूड करा जाता है. MSF rate is pegged 100 basis points or percentage point above the repo rate or LAF rate. This is by convention. I repeat, this is by convention. Convention के हिसाब से MSF को रेपो रेट से नॉर्मली 1% प्लस रखते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है. इट कैन इवन बी लेस देन 1%. तो अगर रेपो रेट आज की डेट में 4.4 है, तो MSF जो है वो 5.4 नहीं है, वो 4%, मतलब 4 के रेशो में ही आता है. तो टोटली डिपेंड्स. दिस इज बाय कन्वेंशन. Under MSF, banks can borrow funds up to 1% of their NDTL. 8% of NDTL तक के funds borrow हो सकते हैं. This is something which is stated by the MSF. तो चीजों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. Marginal standing facility are two instruments that are used by the central bank to control credit. In what ways is LAF different from MSF? LAF was made effective in 2000, but MSF was introduced in 2011. Absolutely true. बिल्कुल सही statement है. Under LAF, banks can borrow from RBI at repo rate by pledging government securities over and above SLR. बिल्कुल सही statement है. Repo rate पे banks जो है वो lend कर सकते हैं. In the case of MSF, banks can borrow funds up to 1 percentage points of their NDTL. Banks can borrow funds up to 1 percentage points of their NDTL. बिल्कुल सही statement है. और banks can take overnight loan. ये याद रख लेना, ओवरनाइट लोन है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट होते ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. LAF rate is generally a percentage point higher than MSF rate. It is generally a percentage point higher, but it is not compulsory. ये स्टेटमेंट गलत है. It is generally a percentage point higher. ये आप बोल सकते हो कि आज तक चलता आ रहा है, लेकिन अगर ये कल को सिर्फ 0.5% हायर आया तो क्या करोगे? ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मैं फिर बता रहा हूं, ये याद रख लेना. ये आपको कई सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा. ये स्टेटमेंट आपको कई सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, जहां पे ये लिखा होगा दैट जो आपका जो MSF रेट है वो 1 परसेंटेज पॉइंट हायर है. MSF रेट 1 परसेंटेज पॉइंट हायर जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अगर वो 1 परसेंटेज पॉइंट से कम है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं हो सकता. वो भी हो सकता है. और दूसरी चीज, LAF रेट कभी भी MSF से हाई नहीं होता. जैसे MSF will be higher than LAF. This is true. MSF can be higher by 0.1, 0.5, 0.7%. लेकिन LAF can never be higher than MSF. ये illogical है. LAF can never be higher than MSF. This is an illogical statement. विद्यार्थियों मैं यही समझा रहा हूँ. LAF cannot be higher than MSF. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप लोग समझाओगे मुझे. What is the reason that LAF can never be higher than MSF? बताने की कोशिश करो. Tell me. यस. अरे MSF तो वेरी शॉर्ट टर्म हो गया ना. MSF इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म. अब इसमें भी अगर वो हायर होगा तो फिर बैंक कहां से पैसा कमाएगा? फिर आपने क्या कमाया? व्हाट डिड यू अर्न? यू डिड नॉट अर्न एनीथिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अरे समझ में आया तुम लोगों को? Is everyone able to understand? Give me a thumbs up. All the students should give a thumbs up. Take the count up to 2,500 likes. And come to the next question. Tell me, what is correct? Every single student should press the thumb. Take the count up to 2,500 likes. And with that mentality, with that mindset, with that hunger to understand and learn, answer this question, please. During a period of high inflationary trends and high economic growth rates, which among the following strategies are likely to be undertaken by the Reserve Bank? इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है every single student has to press the thumb at least once. कम से कम एक बार. This is the least you can do for me.
Keep giving a thumbs up. Keep giving a thumbs up. All the students should press, including Shaurav, Shravan Kumar. During a period of high inflationary trends and high economic growth rates, which among the following strategies are likely to be undertaken by Reserve Bank of India? अमरीश कुमार यादव ने मुझे एक लिंक भेजा है, उस पर थम्स अप है इतना बड़ा सा. Very innovative, Amrish Kumar Yadav. I'm proud of you. So, which among the following strategies are likely to be undertaken by the Reserve Bank? Correct answer. A contractionary monetary policy, a decrease of the RDR, sell government securities to the bank. Government securities to the bank sell करना है. समझाते हैं सुशांत भारद्वाज. एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको, क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपको, एक एक चीज समझ में आएगी. आई जस्ट वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन. आई रिपीट, I just want your undivided attention in every single case. Do I have your attention? If I have your attention, then every student should press the thumb and listen to me very, very, very carefully. सबसे पहला जो टर्म मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशो. Every bank has to compulsorily maintain certain reserve requirements. हर एक बैंक को कुछ reserve requirements maintain करने की obligation है. It is an obligation on them to maintain certain reserve requirements. ये जो दो reserve requirements है, ये CRR और SLR के नाम से जाने जाते हैं. They are known by the names of cash reserve ratio as well as statutory liquidity ratio. इन दोनों रिजर्व्स को रिजर्व डिपॉजिट रेशो में इंक्लूड करा जाता है, या इसके बेसिस पे रिजर्व डिपॉजिट रेशो निकाला जाता है. एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सीआरआर एसएलआर. सीआरआर इज 5%. लेट्स टेक राउंड ऑफ फिगर, एंड एसएलआर इज 20%. तो इन टोटालिटी 25% हो गया, तो हमारा रिजर्व डिपॉजिट रेशो जो है वो 25% का होगा. इट विल बी 1/4, 25%, राइट? 25% ऑफ एनडीटीएल. मतलब जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो क्या है? आरडीआर क्या चल रहा है? रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज 1/4 और 25%. दिस इज रिजर्व डिपॉजिट रेशो. तो रिजर्व डिपॉजिट रेशो का ब्रॉडली स्पीकिंग ये मतलब होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व डिपॉजिट रेशो. ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद बारी आती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की. आई रिपीट, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी याद रखिएगा दो तरह की होती है. देयर आर मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ टू टाइप्स. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड एज, जो पहले तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और CMP. आई रिपीट, CMP, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एंड द सेकंड टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, EMP एंड CMP. आप ये समझ लीजिए, every 2 months when RBI governor sits on that seat and announces a monetary policy review. अगर RBI के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बताते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आप ये चीज अगली बार से आप फिगर आउट करोगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी RBI गवर्नर ने बताई है, क्या वो EMP है या वो CMP है. Is that expansionary or is that contractionary? I repeat, is that expansionary or is that contractionary? Let's have a look. अभी आपको within minutes समझ में आ जाएगा, within a couple of minutes. आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी जिंदगी में. बस मुझे अपना undivided attention दीजिए. I want your undivided attention and I want a lot of thumbs up. All right. So क्या चीज है? When we talk about CRR or when we talk about SLR, or for that matter any other policy rate, if CRR is 4.5% and SLR is 18.5%, 18.5 और 4.5, 23% हुआ ये, जो कि अभी चल रहा है. 23% हमारा RDR चल रहा है. रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज 23%, राइट? अगर RBI को, if RBI by chance wants to decrease the money supply in the economy, यदि RBI को मार्केट इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो RBI को इन रेट्स के साथ क्या करना चाहिए? What should the RBI do with these rates? बताइए. RBI should increase these rates. RBI को ये रेट्स इंक्रीज करने चाहिए. इसका 5% और इसका 20%.
So the rates have been increased by 0.5%, CRR has been increased by 0.5%, and SLR has been increased by 1.5%, which is a big jump, 150 basis points. तो ये 25% आरडीआर हो जाता है. आरडीआर इज 25%. अगर आरडीआर 25% है, जो कि 23% से ऑब्वियसली हाई है, प्लस 2%, इट इज हायर बाय 2%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मार्केट में मनी सप्लाई का क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? विल द मनी सप्लाई रिड्यूस और इंक्रीज? Money supply will reduce. When the money supply will reduce, what will happen to inflationary tendencies? What will happen to the levels of inflation? Inflation का क्या होगा? Inflation will also reduce. Money supply will reduce and inflation will reduce. So when the money supply reduces, when inflation reduces, automatically what happens? The money supply contracts. उसको बोलते हैं contraction. तो इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. आई रिपीट, इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आपने रेट बढ़ाए जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया. अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इसका बिल्कुल सिंपल है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है, मार्केट में इन्फ्लेशन कम करना है, तो रेट्स को बढ़ाओ. इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज वेरी वेरी सिंपल, एंड इट इज एज, मतलब मैंने इससे ज्यादा सिंपली कोई नहीं समझा सकता. ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया. यस, इट कैन बी कॉल्ड एज डियर मनी पॉलिसी आल्सो. वेरी वेरी करेक्ट, कि आपके लोन्स जो है महंगे हो गए हैं. राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? विश्वकर्मा, वैशाली शर्मा, जतेंद्र, लक्ष्य, शौविक, मेनक, ऋतु कुमारी. यस, सो दिस इज वन. ये पहली चीज हुई. इसका ऑपोजिट जो है वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. द ऑपोजिट ऑफ दिस इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, 23% हमारा जो है आरडीआर है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, और हमारा जो रेपो रेट था, रेपो रेट वाज 5%. लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेपो रेट वाज 5%. पिछले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट कम करके 4.5%, 4.4% किया गया है. 4.4% रेपो रेट हैज बीन रिड्यूस्ड. अगर रेपो रेट रिड्यूस करा है, अगर सीआरआर रिड्यूस करा है, तो उसका क्या मतलब है? व्हाट इज द इंडिकेशन दैट द सेंट्रल बैंक वांट्स टू गिव? सेंट्रल बैंक किस तरीके का इंडिकेशन देना चाहती है? सेंट्रल बैंक वांट्स टू गिव द इंडिकेशन दैट वी वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर आप रेट्स कम करोगे तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी. बैंक विल हैव मोर लिक्विडिटी, and when the banks will have more liquidity, automatically what would it lead to? It would lead to increase in money supply. This is called as expansionary monetary policy. इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है expansionary monetary policy. So one is CMP, contractionary monetary policy. The second is EMP, expansionary monetary policy. ये दो तरीके की monetary policy है जो मैंने आपको समझाई है. अब इन दोनों का आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखें. ये देखिए, जिन जो कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, आप वो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सीएमपी. इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड टू फाइट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को फाइट करना है, व्हिच इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई. Decreasing the money supply. So when you have to decrease the money supply, what do you do with key rates? What do you do with reserve ratios? RDR के साथ क्या करोगे? बढ़ा दोगे. You would increase RDR. You would increase the key rates. In order to increase the cost of borrowing, which in turn decreases GDP and dampens inflation. So it increases the cost of borrowing. Cost of borrowing बढ़ाई जाती है, which in turn decreases GDP and dampens inflation. Inflation को damp कर देंगे और GDP को decrease कर देंगे. This is something which is included as a part of contractionary monetary policy. When the economy is under inflationary pressures, the central bank, in our case it's RBI, decreases the money supply. यही बात होती है भाई, अगर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा. मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसे कम करो. To decrease the money supply by either increasing the bank rate or policy rate. बैंक रेट और पॉलिसी रेट को आप डिक्रीज करें, इंक्रीज करें. आप रेट्स को इंक्रीज करोगे तो लोन महंगा होगा. लोन महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग बोरो करना कम कर देंगे. Liquidity adjustment facility, or sale of government bonds, or increase in the required reserve deposit ratio, or by carrying out all changes simultaneously. आप कुछ भी करो रेट्स के साथ, रेट्स अल्टीमेटली इंक्रीज करने पड़ेंगे.
रिजर्व रेशियोज इंक्रीज करने पड़ेंगे। जब आप ये चीजें इंक्रीज करोगे तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो आपका इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैज सम साइड इफेक्ट्स टू। साइड इफेक्ट्स ये है कि आपका ग्रोथ रेट भी नीचे आ जाता है, इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ रेट भी नीचे आ जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी आल्सो गेट। तो ये भी चीज है, ये भी चीज आप ध्यान रखें कि ग्रोथ रेट आल्सो कम्स डाउन। सो प्लीज रिमेंबर दिस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। So please remember this. You have to remember this very very carefully and very very clearly as to how is it impacted, कि वो चीज कैसे impact हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब मैं एक स्टेटमेंट पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। इंक्रीज इन रेपो रेट decreased inflation in the economy. This is reflective of contractionary monetary policy. True or false? Increase in repo rate decreased inflation in the economy. This is reflective of contractionary monetary policy. सोच समझ के जवाब देना। बताओ, क्या मॉनेटरी पॉलिसी का ये डिक्रीज होगा? अरे डेफिनेटली इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। किस चीज का एग्जांपल है ये? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक और स्टेटमेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। Listen to it very, very, very carefully and answer the statement. I'm going to ask. Decrease in repo rate. Decrease in repo rate increases the money supply in the economy. Decrease in repo rate increases the money supply in the economy. It is an example of expansionary monetary policy. It is an example of expansionary monetary policy. एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसी बात पे ईएमपी का डेफिनेशन देखिए। लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ईएमपी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, a policy by monetary authorities to expand money supply and boost economic activity mainly by keeping interest rates low. Interest rates are low. तभी मैंने आपको क्या बोला था अपने एग्जांपल के हिसाब से? रेपो रेट्स आर रिड्यूसिंग, रेपो रेट्स कम है। टू एनकरेज बोरोइंग बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड बैंक्स। जाहिर सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक्स की बोरोइंग्स बढ़ेंगी, वो एनकरेज होगा बैंक्स की बोरोइंग और लोग और ज्यादा बोरो करेंगे। So an expansionary monetary policy can involve quantitative easing. ये quantitative easing involve करेगा, whereby central banks purchase assets from banks. Central banks जो है वो assets bank से purchase करते हैं। This has the effect of lowering yields on bonds and creating cheaper borrowings for banks. ये cheaper borrowings जो है वो बैंक से create हो। This in turn boosts banks' capacity to lend to individuals and businesses. भाई obvious सी बात है, अगर interest rate कम होगा तो बैंक अपने interest rates कम करेगी, बैंक interest rates कम करेगी तो और लोग borrow करेंगे। This is called as expansionary monetary policy. It also risks ramping up inflation. Expansionary monetary policy जब अडॉप्ट करी जाती है तो इसका मतलब ये है आप अपने इंटरेस्ट रेट्स करते हो कम। जब इंटरेस्ट रेट्स कम करते हो तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का क्या होगा? Will the inflation rise or not? Please tell me, will the inflation rise? There are many factors, Abula. There are global factors, national factors, domestic factors, company factors. कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं ये सवाल सही है या गलत है? इज दिस व्हाट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताइए। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स,
and high economic growth rates, which among the following strategies are likely to be undertaken by RBI? Which of the following strategies are likely to be undertaken by the Reserve Bank of India governor? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आप क्या करोगे? विल यू अंडरटेक एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी? बताओ, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी? CMP. You will undertake CMP rather than expansionary. Expansionary से तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. So contractionary monetary policy, this can be done. First is correct. Decrease the RDR. बताइए, decrease the RDR. अगर RDR कम हो जाए तो क्या आपका इन्फ्लेशन कम होगा? Will it reduce the inflation? No way. It will not reduce the inflation. In fact, it would further add to inflation. This statement is incorrect. Sell government securities to banks. कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बैंक्स को बेची जाती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक्स, बिल्कुल सही बात है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बैंक्स को बेची जाती है. तो sell government securities to banks, 1 and 3 only are correct. A is correct, 1 and 3 only are correct. So this is correct. A only is correct. Are you able to understand? Is everyone able to understand? Yes. So we are coming to the next question. Market Stabilization Scheme, MSS. Market Stabilization Scheme was introduced in India in 2004 to strengthen RBI's ability to conduct exchange rate and monetary management. Consider the following statements. अनिल कुमार आचार्य, there are many reasons. Government securities, government चाहती नहीं कि हम लोगों के सामने इशू करें. लोगों के सामने इशू करो तो बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, मतलब बहुत लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वांट टू इशू इट्स सिक्योरिटीज इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो वांट्स मनी थ्रू सिक्योरिटीज, तो इट आस्क्स आरबीआई टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. हाँ, तो कुणाल ज्योति आना, इकोनॉमिक ग्रोथ को कम नहीं करना है, इन्फ्लेशन कम करना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्काउंट कर सकते हैं हम लोग. Sunny Kumar, this is the balance that has to be maintained by RBI governor and finance minister. RBI governor, finance minister इतने sticky wicket पे होते हैं that if they do something, it would lead to growth, but it would also lead to inflation. And if they try to hold back, if they adopt a conservative approach, तो फिर growth नहीं होगी लेकिन inflation कम होगा. तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना एक आरबीआई गवर्नर के लिए और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इतना मुश्किल है. इट इज सो डिफिकल्ट. जब तक चिदम्बरम साहब थे, इनफैक्ट जब प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, तब तक आरबीआई के गवर्नर के बीच में और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था. देयर वाज ऑलवेज अ टिफ बिटवीन बोथ द अथॉरिटीज, because according to RBI governor, finance minister was doing wrong. According to the finance minister, RBI governor was not doing anything. So there were hundreds of clashes between both. So guys, have you ever heard of the market stabilization scheme? क्या आपने कभी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में पढ़ा है? Market stabilization scheme was introduced in India in 2004 to strengthen RBI's ability to conduct exchange rate and monetary management. मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब है मनी सप्लाई मैनेजमेंट, और एक्सचेंज रेट आप लोग जानते हैं, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना. तो एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, क्या खास बात है? इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और मनी सप्लाई. ऐसे एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना है बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. भाई अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करोगे, लोग खरीदेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा ना. अगर मैं कुछ खरीदूंगा जो गवर्नमेंट ने इशू करा है या जो आरबीआई ने इशू करा है, तो आरबीआई को पैसे देके खरीदूंगा, तो मेरे हाथ में पैसा नीचे हो गया, अब वो पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता. सो दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2004 टू स्ट्रेंथन आरबीआई's ability to conduct exchange rate and monetary management. एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी मैनेजमेंट को अगर कंडक्ट करना है तो आरबीआई की एबिलिटी यहां पे देखी जाती है. इट इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई's एबिलिटी व्हिच इज सीन ओवर हियर. These are basically special bonds
floated by the RBI on behalf of the government to absorb excess liquidity. Excess liquidity को absorb करना है, तो special bonds floated by the RBI on behalf of the government to absorb excess liquidity. This tool is resorted to when more conventional monetary policy tools such as policy, repo, reverse repo, bank rate becomes insufficient. मैंने कल आपको OMO के बारे में समझाया था, याद आ रहा है? मैंने बोला था जब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं कर पाते हो, तो फिर आप OMO पे आते हो. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कुछ कुछ वैसी ही है. मनी ऑब्टेन्ड अंडर एमएसएस शुड बी केप्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब ऐसा नहीं कि आरबीआई खर्च कर दे. अरे अगर आरबीआई ने भी खर्च कर दिया तो फिर तो पर्पस डिफीट हो गया कि आपने यहां से पैसा उठाया वहां खर्च कर दिया. तो मार्केट में मनी सप्लाई तो सेम रहा ना. अगर आप चाहते हो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, तो आप जब इंस्ट्रूमेंट्स बेच के कैश इकट्ठा करते हो तो कैश आपके पास होना चाहिए. इट कैनॉट बी इशूड टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए नहीं इशू करोगे. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो पैसा आपने दे दिया तो फिर जस की तस हो जाएगा, मार्केट में उतना ही मनी सप्लाई हो जाएगा. This is because if it is transferred, government will spend the money in the economy, thereby adding to the liquidity. तो फिर फायदा क्या हुआ? What is the use? The issued securities are government bonds. They are called as market stabilization bonds. जो securities issue करी गई है वो सरकारी bonds है, and they are called as MSBs, market stabilization bonds. Thus, the bonds issued under MSS are called as market stabilization bonds, and market stabilization bonds are issued under market stabilization scheme. These securities are owned by the government, though they are issued by RBI. So these securities are owned by the government, though they are issued by RBI. वो RBI ही issue करता है. Market stabilization scheme. Mostly there are shorter tenure bonds of less than 6 months maturity, but the tenure differs depending upon requirement. Requirement के हिसाब से differ किया जाता है. So it is of less than 6 months maturity. 6 महीने की maturity से कम. तो there are shorter tenure bonds of less than 6 months maturity. तो कोई सरकारी बॉन्ड्स ऐसे इशू करे हैं जिसकी मेच्योरिटी 6 महीने से कम है. मतलब बेसिकली आपने बॉन्ड्स इशू भी कर दिए, 6 महीने में रिडीम भी करने पड़ेंगे, पैसे भी वापस देने पड़ेंगे, लेकिन 6 महीने के लिए आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, मनी सप्लाई कंट्रोल कर लिया. तो एमएसएस बॉन्ड्स आर रेज्ड टू एन ऑक्शन. दे आर ट्रेसेबल इन सेकेंडरी मार्केट. देखिए व्हेन द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 हैपेंड, इट लेड टू अ सर्ज इन डिपॉजिट्स. बहुत सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया. RBI asked banks to set aside all deposits received between September 16 and November 16 as CRR. In other words, RBI called for a 100% incremental CRR. RBI ने ये बोला कि 100% CRR बढ़ा दो, क्योंकि फिर बैंक्स के पास इतने डिपॉजिट्स आ गए, तो अगर कल को बैंक के पास कोई लोन मांगने गया तो उसको वो लोन दे देगा बैंक. तो उसने क्या करा, CRR बढ़वा दिया. जैसे ही आप CRR बढ़ाते हो क्या हो जाता है, आपको मनी सप्लाई मार्केट में कम देना पड़ता है. Yes, later RBI decided to issue market stabilization scheme bonds to manage excess liquidity. जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बैंक ज्यादा लोन देने लगेंगे, उससे और लिक्विडिटी होगी. तो उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया पहले और फिर एमएसएस को इंट्रोड्यूस करा. आरबीआई फर्स्ट इंट्रोड्यूस एमएसएस बॉन्ड्स इन February 2004 when the country was flushed with dollar inflows. कंट्री को डॉलर इन्फ्लोस से फ्लश करा हुआ था, which needed to be converted into the rupee. This created huge surplus liquidity in the system, and the RBI decided to impound it by issuing MSS, Market Stabilization Scheme bonds, as the central bank was running out of stock of regular government bonds. तो दो तरीके हैं. एक तो ये है कि नॉर्मल तरीके हैं कि आपने रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर से कुछ कंट्रोल कर लिया मनी सप्लाई. दूसरा ये है कि आपने सरकारी बॉन्ड इशू कर दिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. A market stabilization scheme was introduced in India in 2004. To strengthen RBI's ability to conduct exchange rate and monetary management, consider the following statements. Following statement को consider करें. The bonds issued under MSS are called as market stabilization bonds. Statement is absolutely true. 100% सच्चाई है इसमें. MSS bonds can be issued to meet government's expenditure. तो MSS bonds से they can be issued to meet government expenditure. सरकारी expenditure को meet करने के लिए MSS bonds issue करे जाते हैं. They are issued to meet government's expenditure. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको इशू कर दिया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, तो जो भी आपने काम करा है उसका पर्पस हो गया जीरो, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया जीरो. दिस इज रॉन्ग. पोस्ट डीमोनेटाइजेशन आरबीआई हैड डिसाइडेड टू इशू एमएसएस बॉन्ड्स टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी. तो आरबीआई हैड डिसाइडेड टू इशू एमएसएस बॉन्ड्स टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी. एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है. सो बिल्कुल सही बात है. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 and 3 is correct, second is incorrect. और हमसे पूछा ये जा रहा है which of the following statements are not correct. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो second statement is not correct, hence answer is C. 2 only is the answer. Guys, are you able to understand?
Yes. Now we come to a very, very important part of this chapter. There is no difference between MSS MSBs. कोई डिफरेंस नहीं है. MSS के तहत जो बॉन्ड्स इशू करे जाते हैं उसको MSB कहा जाता है. कोई डिफरेंस नहीं है. अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का नाम है. उसके तहत जो बॉन्ड्स इशू करे जा रहे हैं उसको MSB कहा जाता है. मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स ये है. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. वो एक ही चीज है. डीमोनेटाइजेशन में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती. भाई आपने जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया. करोड़ों लोगों ने जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया. तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ गई. बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो बैंक आगे बहुत आसानी से लोन देगा ना. नहीं समझे. बैंक आगे बहुत आसानी से लोन देगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी हाई हो जाएगी. तो इससे पहले बैंक्स लोन देते. आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया. गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या आप लोग उर्जित पटेल के बारे में जानते हैं? डू यू नो हु उर्जित पटेल इज? हु इज उर्जित पटेल? एक्स आरबीआई गवर्नर. अच्छा गाइस, सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम हैंडल. आप में से जितने जितने लोगों ने टेलीग्राम हैंडल को सब्सक्राइब नहीं करा, ये जो लिंक आप देख रहे हो चैट बॉक्स में जो लिंक पिन करा हुआ है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. आई एम रिमूविंग दिस लिंक. मैं लिंक रिमूव कर दूंगा 2 मिनट में. आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस लिंक को. ये सारे पीडीएफ्स आपको वही मिल जाएंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस लिंक. ये जो लिंक यहाँ पे पिन करा हुआ है मैंने, इस लिंक पे क्लिक करो और लिंक ज्वाइन कर दो. और जिन लोगों से लिंक नहीं खुल रहा है वो इस आईएएस चैनल को ढूंढ लें. आयुष संघीज आईएएस अकेडमी ऑन टेलीग्राम. वो मिल जाएगा तो आप उससे सब्सक्राइब कर लें. लिंक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे और सारे आने वाले क्लासेस के अपडेट्स मिल जाएंगे. चलिए जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सीखते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC. Monetary Policy Committee was set up in 2016, consequent to the agreement reached between government and RBI in order to bring more stability in the monetary policy framework. ज्यादा stability MPF monetary policy framework में आ रहा था. Consider the following statement with respect to MPC. Monetary Policy Committee में आप सारे statements को consider करें. Correctness बतानी है. बता सकते हैं आप लोग? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिकमेंडेशन थी वो उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन थी, जिसके तहत एमपीसी बनाई गई थी. इट वाज उर्जित पटेल्स रिकमेंडेशन, एमपीसी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उर्जित पटेल ने रिकमेंड करी थी कि बननी चाहिए. इट इज सपोज टू बी मेड एंड इट वाज मेड. इन फैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई भी गई थी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो होता है वो उस कमेटी से होते हुए निकलता है. मतलब कमेटी जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पूछ के करते हो काम. यू आस्क मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड डू. कैन बी सेड. यशस्वी वर्मा, कैन बी सेड, कह सकते हो. सो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ये बताएं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं. चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं.
Let me discuss it with you. MPC. तो MPC was created according to Urjit Patel Committee recommendations. Urjit Patel Committee recommendations के हिसाब से बनाया गया था. देखिए जी. So this is MPC. RBI Act of 1934 has been amended by Finance Act 2016 to provide for a statutory and institutional framework called as MPC, Monetary Policy Committee, for maintaining क्या aim है? Price stability. So guys, कल डॉक्टर शशि थरूर ने जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज, मिनिस्टर कंसर्न, उनको चिट्ठी लिखा, उनको ट्वीट करके पूछा कि यूपीएससी का एग्जाम 31 मई को हो रहा है नहीं हो रहा है. उसमें पूरा आर्टिकल है. सो आई हैव पोस्टेड दैट आर्टिकल ऑन माय टेलीग्राम हैंडल. तो टेलीग्राम हैंडल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो डॉक्टर शशि थरूर को अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला है. ही हैजंट गॉट द रिप्लाई येट, बट लेट्स सी, ही माइट जस्ट गेट द रिप्लाई. He might just get the reply of what is happening over there, कि क्या एग्जाम 31 मई को होगा या नहीं होगा. सो देखिए, इसमें काफी सारा डेलिबरेशन है और 31 मई बहुत दूर है. 31 मई इज क्वाइट फार. सो वी कैनॉट एस्टिमेट कि एग्जाम उस दिन होगा या नहीं होगा. अगर आप लोग मेरा सिंपल रिकमेंडेशन माने तो मैं इतना आपसे बोल सकता हूँ कि आप 31 मई के हिसाब से ही तैयारी करें. Don't think that exam is going to be postponed, because there has been no official announcement and there has not been even a hint कि exam postpone होने वाला है. Are you getting the point? एक hint भी नहीं हुआ. So please make sure that you study according to the 31st of May as the exam date, as the D day, right? गौरांग शर्मा, तुम हाँ जी. तो मैं एमपीसी की बात कर रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दो ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाया गया था, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. प्राइस स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. MPC would be entrusted with the task of fixing the benchmark policy rate required to control inflation. आपको मैं एक स्पेसिफिक टर्म बताना चाहता हूं. The term is called as inflation targeting approach. I repeat, inflation targeting approach. इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच का मतलब है, अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है. वी हैव टू टारगेट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को टारगेट करना एमपीसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा विद द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल. A committee-based approach for determining the monetary policy will add lot of value and transparency to monetary policy decisions. ये value और transparency add करेगा monetary policy decisions के लिए. Growth automatically होगी सनी कुमार. They don't have to think about growth. They have to think about inflation. So meetings of MPC shall be held at least 4 times a year. Quarter में एक बार, हर quarter में एक बार. And it shall publish its decisions after each such meeting. वो ये decisions जो है हर meeting के बाद publish करेंगे. MPC, Monetary Policy Committee की बात हो रही है. Central government has notified in the official gazette that 4% CPI inflation as a target for the period from this date to this date 2021. आपको मैंने अभी एक टर्म बताया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच. आप ध्यान रखेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच के हिसाब से हमारी कंट्री का आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी 4%. इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच, आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी 4%. द बैंड शुड बी +-2%. +-2% का मतलब है या तो वो 6% तक जा सकता है या वो 2% तक आ सकता है. इट कैन ईदर गो अप टू 6% और इट कैन कम डाउन टू 2%. ये इसका टॉलरेंस लेवल है. 4% is the ideal rate of inflation. It can go up to 6%. It can come down to 2%. Monetary Policy Committee. So central government determines the inflation target in terms of consumer price index once in every 5 years in consultation with the RBI. 5 साल में एक बार in consultation with Reserve Bank of India. This is what it does. This target would be notified in the official gazette. जो official gazette में आप लिखोगे, जो कि लिखा जा चुका है.
तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में इन टोटालिटी 6 मेंबर रहेंगे. इट वुड हैव 6 मेंबर्स, starting with the governor of the RBI, who's the chairperson, ex officio chairperson, governor of the RBI. Governor of the RBI is who is the chairperson. Deputy governor of the RBI in charge of monetary policy, member ex officio. Deputy governor जो है वो ex officio member रहेंगे in charge of monetary policy. One officer of RBI nominated by central board. तो देखिए, एक तो गवर्नर खुद होगा जो चेयरपर्सन भी है, डेप्यूटी गवर्नर दूसरे हो गए, तो ये तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट हो गई. तीसरा एक नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा, नॉमिनेटेड मेंबर बाय द आरबीआई गवर्नर. ये 3 मेंबर्स आरबीआई को रिप्रेजेंट करेंगे. दीज 3 मेंबर्स वुड रिप्रेजेंट द आरबीआई. और इन 3 मेंबर्स में से जो गवर्नर है वो आरबीआई के चेयरपर्सन, जो गवर्नर है वो चेयरपर्सन रहेंगे कमिटी के. दिस इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड. और बाकी के 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे. These 3 members would be from the government of India. Shri Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute, member. Professor Pammi Dua, Director, Delhi School of Economics, and this person again. तो ये 3 लोग जो है ये भारत सरकार की तरफ से आए हुए एमपीसी में बैठने के लिए. तो members referred to at 4 to 6 above will hold office for a period of 4 years. ये जो भारत सरकार के द्वारा रेकमेंड करे हुए मेंबर्स है ये 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे और until further orders whichever is earlier. और बाकी के जो ऊपर के 3 मेंबर्स है वो आरबीआई के मेंबर्स हैं. So as per the provisions of RBI Act, out of 6 members of Monetary Policy Committee, 3 members will be from RBI and other 3 members would be from MPC. They would be appointed by the central government. Central government द्वारा appoint किए जाएंगे. MPC takes decisions based on majority vote. PT fact. Majority vote. Majority क्या है? 4 out of 6. 3 out of 6 majority नहीं है. 4 out of 6 majority है. By those who are present and voting. इन केस ऑफ अ टाई, अगर 3 और 3 टाई हो जाता है तो उसमें आरबीआई गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट होगा. मतलब वैसे नॉर्मली आरबीआई गवर्नर वोट करेंगे और अगर टाई हो जाए तो आरबीआई गवर्नर के हाथ में एक एडिशनल वोट होगा जो कि कास्टिंग वोट होगा, डिसाइडिंग वोट होगा. द डिसीजन ऑफ द कमिटी वुड बी बाइंडिंग ऑन द आरबीआई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट. जो कमिटी ने डिसाइड करा वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होगा. सो मेंबर्स ऑफ एमपीसी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. So members of MPC appointed by central government, they shall hold office for a period of 4 years. The 3 central government nominees of the MPC appointed by the search cum selection committee will hold office for a period of 4 years. So they basically office जो है office is 4 years, 4-year period. With the introduction of MPC, RBI will follow a system similar to the one followed by most global central banks. Basically उर्जित पटेल का ये ऑब्जेक्टिव था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आप अपने मन के हिसाब से ना बनाएं, आप कंसल्ट करके अलग अलग क्वार्टर से कंसल्ट करके आप एमपीसी बनाएं. तो यूएस फेड रिजर्व सेट्स इट्स बेंचमार्क फंड रेट थ्रू फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी. बैंक ऑफ इंग्लैंड आल्सो हैज द एमपीसी टू डिसाइड द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट इन द यूके. सो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इट आल्सो हैज द एमपीसी टू डिसाइड ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट ऑफ द यूके. तो इस तरीके से ये बनाया गया है. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक ऐसी बॉडी है जिसमें कंसल्ट करके सोच विचार करके मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है और उसको पब्लिक के सामने उतारा जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू क्वेश्चंस द गवर्नर कि भाई आपने क्या करा है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के तहत. अगर आपको 4% जो है इन्फ्लेशन आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करना है तो +2 और -2 आप कितना फ्लेक्सिबल हो, हाउ फ्लेक्सिबल आर यू. तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. MPC is entrusted with the task of fixing the benchmark policy rate, repo rate, required to contain inflation with the specified target level at 4% with an upper and lower tolerance level of 2%. ये है 4 ± 2%. With the introduction of MPC, RBI will follow a system similar to the one followed by most global central banks. बिल्कुल सही है. MPC takes decisions based on majority vote by those who are present and voting. बिल्कुल सही statement है. In case of a tie, RBI governor acts as the ex officio chairperson, enjoys a veto power. RBI गवर्नर के हाथ में वीटो पावर है या RBI गवर्नर के हाथ में कास्टिंग वोट है. दोनों चीजों में फर्क होता है. वीटो पावर का मतलब है कि अगर वो इंडिविजुअली भी वीटो कर दे तो अगर 5:1 का रेशो भी है तो भी आरबीआई गवर्नर की चीज मानी जाएगी, वो वीटो होता है. कास्टिंग वोट का मतलब है मेजॉरिटी वोट. कास्टिंग वोट का मतलब है डिसाइडिंग वोट. सो वीटो पावर नहीं है, कास्टिंग वोट है. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. ए ओनली इज करेक्ट. ए जो है वो सही स्टेटमेंट है. गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मजा आया आप लोगों को पढ़ के? यस. सो इसी तरीके से पार्ट 5, कल पार्ट 5 है. कल हम लोग करेंगे फिस्कल पॉलिसी. आई रिपीट, कल हम लोग करेंगे फिस्कल पॉलिसी. कल की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी. 12:15 बजे की क्लास है. उसका लिंक यहाँ पे पिन करा हुआ है. जो लिंक यहाँ पे पिन करा हुआ है उस लिंक पे सब्सक्राइब करिएगा. प्लीज सब्सक्राइब ऑन दैट लिंक. वी विल मीट टुमारो अगेन एट 12:15 PM.
Please make sure that you subscribe on the link. And there are more than 500 aspirants in the class right now who are studying in this particular class. Please make sure that you also join on time. आप टाइम पे ज्वाइन करें. इसके सिवा 17 अप्रैल से आई एम कमिंग अप विद अ पॉलिटी सीरीज. मैं पॉलिटी सीरीज से आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट पॉलिटी पार्ट 1. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th of April. सब 17th अप्रैल से लेके 7 क्लासेस वो होगा. आप ध्यान रखिए 27th अप्रैल से मेरा पॉलिटी का नया बैच आ रहा है. पॉलिटी प्री कम मेंस, कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, including mains answer writing practice. This course will start on the 27th of April. All the interested candidates can subscribe to this course. This is for 2021 aspirants. जो 2021 के aspirants हैं उन लोगों के लिए ये one stop shop है पॉलिटी के लिए. 15th अप्रैल से मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है. करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द लास्ट 16 months. फरवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स हम पूरे कवर करेंगे. 16 महीने के करंट अफेयर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के. पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, as well as art and culture. So these courses are there. Other than this, there are many more courses in the category that I teach, civil services. I will be announcing complete courses on economics, complete courses on international relations and social security. Do subscribe to my courses on unacademy.com/plus. Do subscribe to my courses with my code. My code is AYU10. I repeat, my code is AYU10. IU10 is my code. You will be eligible to get a 10% off on your subscription amount. आपको 10% ऑफ मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे. आप जरूर मेरा कोड यूज करिएगा. My code is AYU10. I repeat, AYU10. All right, guys. See you tomorrow at 12:15 again. Concept Economy Class 5. Concept Economy Class 5 है, वो हम लोग कल दोपहर को पढ़ेंगे. कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन दिस AYU10. AYU10 के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो. करंट अफेयर्स की क्लास का टाइम है 6 to 8 PM इवनिंग में, 6 से 8 बजे तक. ठीक है जी. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.